چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر تین مریض، اے سی بند، مریض نڈھال۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہسپتال کا اچانک دورہ۔ بچوں کے ہسپتال کے لیے بڑا پلان بھی بنا لیا۔ چلڈرن ہسپتال اپ گریڈ ہوگا، 150 بیڈز کی نئی ایمرجنسی بنے گی، آؤٹ ڈور کو بھی ماڈل بنایا جائے گا، میڈیسن ویئر ہاؤس بھی بنے گا۔ محسن نقوی کہتے ہیں بچوں کا علاج مفت ہوگا، ادویات بھی ملے گی۔ عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال لاہور کا دورہ کیا اور صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف احکامات جاری کیے۔ ایمرجنسی میں زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی، بند اے سی فوری طور پر چلانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں سے شفقت کا اظہار کیا، ماؤں کو دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چلڈرن ہسپتال بھی اپ گریڈ ہوگا، 150 بیڈز کی میڈیکل ایمرجنسی بنائی جائے گی، آؤٹ ڈور وارڈ بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، میڈیسن ویئر ہاؤس نیا بنے گا۔ بچوں کا نہ صرف فری علاج ہوگا بلکہ ادویات بھی مفت ملیں گی۔ ماؤں کی درخواست پر وزیر اعلیٰ نے بچوں کے علاج معالجے کے لیے وائس چانسلر چلڈرن یونیورسٹی اور میڈیکل ڈائریکٹر چلڈرن ہسپتال کو ہدایات دیں۔ وائس چانسلر کو ذاتی طور پر بچوں کے علاج معالجے کا کہا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال میں اجلاس بھی ہوا، سہولتوں اور اپ گریڈیشن پلان پر بریفنگ دی گئی۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 2000 روپے جرمانہ، گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 5000 کی پرچی کٹے گی۔ گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو بھی 5000 ہرجانہ دینا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ LDA آئندہ کوئی منصوبہ عدالت کی منظوری کے بغیر شروع نہیں کرے گا۔ محکمہ ماحولیہ دھواں چھوڑنے والے بھٹے سیل کرے گا جبکہ درختوں کو محفوظ بنائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس میں حکم نامہ جاری کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے متعلق تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم کے مطابق لاہور میں پانی کا پائپ لگا کر گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 5000 جرمانہ کیا جائے۔ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز اور متعلقہ حکام تک پہنچانے اور خلاف ورزی کرنے کی اطلاع دینے کے لیے ڈولفن فورس کو موبلائز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ CTO کی استدعا پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا جرمانہ 2000 روپے کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم کے مطابق جو گرین بیلٹس کو پارکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں 5000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کو بند کیا جائے۔ بھٹوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں۔ شہر میں مزید میاواکی جنگل لگائے جائیں۔ LDA آئندہ کوئی پروجیکٹ عدالت کی اجازت کے بغیر شروع نہیں کرے گی۔ شہری ہارون فاروق سمیت دیگر نے اسموک کے تدارک کے لیے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ گیس صارفین کے لیے بری خبر، حکومت نے گیس کی قیمتوں میں پھر اضافے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے کم گیس استعمال کرنے والے پر کئی گنا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فکس چارجز میں 3900% اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پروٹیکٹڈ گیس صارفین کے لیے فکس ماہانہ چارجز 400 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمتوں میں تقریباً 200% تک اضافہ کیا جائے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز۔ صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 198.33% تک اضافے کی تجویز، جبکہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کرنے کی سفارش۔ قیمتوں میں اضافے کی منظوری ECC اور کابینہ سے لی جائے گی۔ گیس کی قیمتوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بھی آ گیا۔ سردیوں میں صرف 11 گھنٹے گیس ملے گی۔ خواتین کو ناشتے کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوگا۔ صبح 5:30 سے 9 بجے تک چولہا جلے گا۔ دوپہر 11:30 سے 2 بجے تک گیس ملے گی۔ رات کی روٹی پکانے کے لیے شام 5:30 سے 10 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا۔ سوئی نادرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے کھانا پکانے کے اوقات میں گیس فراہمی کا شیڈول بنا لیا ہے، جس کے مطابق ناشتہ کے اوقات میں صبح 5:30 سے 9 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ دوپہر میں 11:30 سے 2 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس ملے گی۔ اس طرح رات کے اوقات میں شام 5:30 سے 10 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ موسم سرما میں گیس فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس وقت شہر کے بیشتر علاقوں میں دن بھر گیس فراہم کی جا رہی ہے، تاہم آئندہ ماہ سے شیڈول پر سختی سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ ڈینگی وائرس کی شدت برقرار ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 82 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی وائرس کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 82 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 54 مریض زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت میں مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے۔ شہر کے مزید 1241 مقامات سے ڈینگی لاروا ڈھونڈ کر تلف کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں آشوب چشم کے مریضوں میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں وبا کا شکار 326 نئے مریض سامنے آ گئے۔
आशूबे चश्म के केसेस में इजाफा जारी है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान आशूबे चश्म के 3031 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर पंजाब में गुज़िश्ता एक माह के दौरान अब तक आशूबे चश्म के मरीजों की मजमूई तादाद 1,24,496 हो गई है। लाहौर में एक दिन में 326 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 30 रोज के दौरान मजमूई तौर पर शहर में आशूबे चश्म के 10,700 नए मरीज सामने आए हैं। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा। पंजाब भर से आए असातिज़ा और मुलाज़मिन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। महकमा तालीम के आला अफसरान की बेहिसी पर असातिज़ा और मुलाज़मिन के शिकवे। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली का फैसला वापस लेने, 15% डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी और मुलाजमों की मुस्तकली का मुतालबा लिए महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को ट्रैफिक के लिए बंद रखा और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। पंजाब भर से सरकारी तालीमी इदारों के मर्द और ख्वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन धरने में शरीक हैं। ये गवर्नमेंट ने जो लीव इनकैशमेंट का काला कानून शुरू किया है, गवर्नमेंट ने मुलाजमीन की जो उसमें होती है, जो उनकी छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों का उनका मुआवजा दिया जाता है पेंशन के करीब, तो गवर्नमेंट ने लीव इनकैशमेंट का वो कानून वो ख़त्म कर दिया है। असातिज़ा और मुलाजमीन का कहना था कि 2 रोज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर बैठे हैं मगर किसी ने राब्ता नहीं किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम किसी सूरत मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि जायज मुतालबात के लिए सरकारी तालीमी इदारों की तालाबंदी और जेर तालीम तलबा और तलबात को भी धरने में शामिल करने पर मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमारे मसाइल को समझते हुए जायज मुतालबात मंजूर करें। जो हमारे ये लीव इनकैशमेंट का रनिंग बेसिस से इनिशियल बेसिक पर किया गया है, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, उसे दोबारा रनिंग पर बहाल किया जाए। धरने के बायस सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। GPO चौक से चुबुर्जी की जानिब सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अबू बकर शान और मोहम्मद नदीम के साथ रोमेल अलियास सिटी 42। तनख्वाहें न मिलने पर शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन का एहतजाज जारी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सेंटर से वाबस्ता डेंगू मुलाजमीन का मुआवजे न मिलने पर एहतजाज। लेस्को वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम कंपनियों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज है। आउटडोर में हड़ताल 18 रोज से जारी है। इलाज मुआवजे की फ्राहमी तातुल से दोचार है, जिसका खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज शदीद परेशान रहते हैं। शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन का कहना है जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हड़ताल जारी रहेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर से वाबस्ता डेंगू मुलाजमीन का मुआवजों की मुसलसल अदम अदायगी पर एहतजाज। वाइस चेयरमैन फेडरेशन मोहम्मद इमरान ने एहतजाज की क़यादत की। एहतजाज में दानिश पीरजादा, खुरम जट और दिगर मौजूद थे। मुलाजमीन ने मुआवजों की अदायगी के साथ साथ तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया। रेड 3 कैंपेन, मरदमशुमारी, कोरोना वैक्सीन कैंपेन के मुलाजमीन के बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया गया। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि मेहनत के मुताबिक उजरत दी जाए। लेस्को वर्कर्स यूनियन के ज़रिए तमाम कंपनीज की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। लेबर हॉल निस्बत रोड पर मुजाहरे की क़यादत यूनियन जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने की। लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। खुर्शीद अहमद ने कहा हुकूमत मुनाफा बख्श कंपनीज को फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा होगा। सार्फिन की मुश्किलात भी बढ़ने के खदशात हैं। उन्होंने मजीद कहा बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम काबिल सत्ताइश है, लेकिन मुलाजमीन पर काम का दबाव और 16 घंटे तक काम कराने से मामलात खराब हो रहे हैं। मुलाजमीन मेडिकल के बुनियाद पर दफातर से छुट्टियां लेने पर मजबूर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज निज़ाम खराब है। इंसाफ कॉलोनी, ग्रीन टाउन, लॉरेंस रोड, चुंगी अमर सद्दू में सड़कों की कई साल से मुरम्मत ना हो सकी। शहरियों का एहतजाज। मुतअद्दिद पार्क समेत नबीपुरा, गुरु मांगट रोड के अवामी पार्क की सफाई ना होने से भी शहरी परेशान हैं। कॉलोनी, ग्रीन टाउन के रिहायशी अरसा दराज से मुश्किलात का शिकार हैं। खराब सीवरेज निज़ाम, टूट फूट का शिकार, सड़कें और गटरों के ढक्कन गायब होने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा 2 साल से इंतजामिया सीवरेज के पाइप रख कर खुद गायब हो गई है। मुतल्लिका महकमे के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर तंग आ गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों ने हुकामे बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। पूरी पानी कोई नहीं, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा। साढ़े गलियां टुटियां पईयां, साढ़े घरां 'च पानी बड़े पए।
लॉन्स रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई सड़क कई माह गुजर जाने के बाद भी न बन सकी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। शहरियों का कहना है खस्ता हाल सड़क के बायस कारें और मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं। मंजिल तक पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ता है। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में मेन सड़क और गलियां गुज़श्ता 10 साल से खस्ता हाली का शिकार हैं। चंद्राए रोड के रिहायशियों का कहना है ट्रैफिक जाम रहती है। हर दिन कोई ना कोई हादसा पेश आता है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार तबाह हो गए हैं। कोई ग्राहक इस तरफ नहीं आता। मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तकरीबन 10-12 साल हो गए और ये रोड जो है ना ये साइड टूटी हुई है और ये नाले में आए दिन लोग गिर रहे होते हैं। चिंची रिक्शा वाले और पैदल चलने वाले भी यहाँ रोजाना गिर रहे होते हैं। नबीपुरा गुरु मांगट रोड का अवामी पार्क गंदगी का ढेर बन गया। सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बाद शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है मुतल्लिका इदारे से शिकायत की गई लेकिन अभी तक पार्क की सफाई नहीं की गई है। लाहौर समेत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ की नाअहली, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, नापेद सहूलियात, तलबा के इंदराज और तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के रिकॉर्ड में गलतियाँ, सैकड़ों स्कूलों में घोस्ट असातिज़ा और तलबा के इनरोलमेंट होने का इंकिशाफ हुआ है। समेत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ की नाअहली के बायस स्कूलों की बुनियादी ढांचे, नापेद सहूलियात, तलबा का इंदराज और तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के रिकॉर्ड में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सैकड़ों स्कूलों में घोस्ट असातिज़ा और तलबा की इनरोलमेंट की गई है। डेटा की दुरुस्तगी के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और PIMU ने फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा की दुरुस्तगी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। स्कूल शुमारी से कबल ऑनलाइन डेटा की दुरुस्तगी की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज को कहा है कि 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन डेटा का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में अद्वियात की खरीदारी में मनपसंद कंपनियों को नवाजने का इंकशाफ हुआ। 350 अद्वियात में से 140 अद्वियात का टेंडर मनपसंद फर्म को दे दिया गया। 42 ने डायरेक्टर परचेज नईम बेग मिर्जा के दस्तखत शुदा दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। जराये के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी की फाइनेंशियल लिस्ट में 140 अद्वियात को सिंगल ऑफर लिखने की बजाय फर्स्ट लोएस्ट लिखा गया। मनपसंद फर्म से मुबैना तौर पर मनपसंद रेट्स पर डील की गई। पैरा कवानीन के मुताबिक सिंगल बिड आने पर खरीदारी के लिए दोबारा टेंडर लाजमी है। सोशल सिक्योरिटी ने अगस्त के दूसरे टेंडर में 140 अद्वियात का टेंडर शामिल ही न किया। अद्वियात टेंडर केस में मुतादिद बार निशानदही के बावजूद कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी एक्शन लेने से कासिर है। एहसास प्रोग्राम की रकम अदायगी में गैर कानूनी कटौतियों का इंकिशाफ। पिंडी स्टॉप की रिहायशी खवातीन ने अमले की बदउनवानी का भांडा फोड़ दिया। अमले के अहलकार 9,000 देकर 2,000 रुपये रिश्वत ले लेते हैं, खवातीन का इल्जाम। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम लेने वाली मुस्तहिक खवातीन को पिंडी स्टॉप सेंटर में शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी 42 से गुफ्तगू में खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि अमला उनको दी जाने वाली रकम से गैर कानूनी कटौती कर लेता है और कटौती ना करवाने पर धमकियां दी जाती हैं। खवातीन ने बताया कि 9,000 रुपए देकर 2,000 रुपए रिश्वत बटोर ली जाती है। अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स धमकियां भी देते हैं। खवातीन का कहना था कि 10-10 दिन तक लंबी कतारों में लग कर पैसे मिलते हैं। अमला बदतमीजी भी करता है। खवातीन ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। महकमा एक्साइज के अफसरान की लापरवाही की वजह से रजिस्ट्रेशन कार्ड्स बनना भी बंद हो गए, जबकि 85 लाख से ज़ायद कार्ड्स फ्राहम करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए 5 माह गुजर गए। साल कबल रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की तैयारी का किया गया कॉन्ट्रैक्ट मई में खत्म होने के बाद मुतलका कंपनी ने आर्जी तौसी के बाद 4 लाख कार्ड्स फराहम किए और एग्रीमेंट के मुताबिक डिमांड पूरी करके रिपोर्ट भिजवा दी। 80,000 से जायद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की 3 करोड़ से जायद रकम भी देने का मरासला भिजवा दिया। जराये के मुताबिक इनबॉक्स कंपनी के साथ 438 रुपए फी कार्ड फराहमी का 5 साला कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। महकमा एक्साइज की जानिब से ताखीर से गुज़िश्ता माह टेंडर दिया गया था, जिसका ताहाल टेक्निकल बिड से आगे का प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सका। सुस्त रवि छुपाने के लिए महकमा एक्साइज वर्चुअल कार्ड्स के हवाले से भी वर्किंग कर रहा है। बर वक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के हवाले से फैसला न किया गया तो नंबर प्लेट्स के बाद स्मार्ट कार्ड्स का भी बहरान संगीन हो जाएगा। शहरियों की 25 लाख नंबर प्लेट्स जेर इल्तवा हैं, जबकि 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड्स भी जेर इल्तवा हैं। रवा माह में नंबर प्लेट्स कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा।
पुलिस की गाड़ियां जलाने का मामला इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने साबिक MNA रुबीना जमील की बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज की, जबकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत 5 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर वफ्द की गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान से मुलाकात। वफ्द की क़यादत चेयरमैन शाह आलम मार्केट्स बोर्ड सैयद अजमत अली शाह ने की, जबकि कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कारोबारी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन शाह आलम मार्केट्स बोर्ड सैयद अजमत अली शाह की सरबराही में ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर बरादरी के वफ्द ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। वफ्द में कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन राना मोहम्मद अशरफ, चीफ एग्जीक्यूटिव SK इंटरनेशनल मोटर्स चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार भी शरीक हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल मियां इमरान जावेद बीबी वडेरी की जानिब से नवाज शरीफ की खैरियत से पाकिस्तान पहुंचने के सिलसिले में बकरे का सदका और दुआ भी करवाई गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल मियां इमरान जावेद बीबी वडेरी की जानिब से मियां नवाज शरीफ के लिए बकरे का सदका दिया गया। गुलबर्ग में दिलकश और दीदा से मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया। 10 ब्रांड्स ने अपने मलबूसात पेश किए, जबकि रंग बिरंगे और नफीस मलबूसात ने खवातीन के दिल मोह लिए। अहले विला की जानिब से मलबूसात की नुमाइश लगाई गई। 10 ब्रांड्स ने अपने मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। रंग बिरंगे और जर्द बर्ग और नफीस मलबूसात खातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। चेक ट्रेंड्स के CEO साहर का कहना था कि विंटर कलेक्शन के साथ साथ फॉर्मल कलेक्शन और रंग बिरंगी हाथों से बनी हुई उनकी शॉल्स मरकज निगाह बनी हुई हैं। हमारे पास जी कलेक्शन है सारी हैंडमेड, हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिल्क भी है और वेटिंग वेयर भी है जो टिश्यू के ऊपर भी है, प्योर रॉसल के ऊपर है, और हमारे पास विंटर शॉल्स भी हैं एंड वी हैव अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस। नुमाइश में शिरकत करने वाली फैशन डिजाइनर्स ने कहा कि खातीन की जानिब से उनके मलबूसात को बहुत सराहा गया, जो कि खुशाइंद बात है। अदर प्योर फैब्रिक्स पे हमारी सारी चादर्स बनी हुई हैं। देयर ऑयल हैंड वर्क, कुछ भी इसमें मशीन वर्क नहीं है, रेशम का काम है, वेरी एक्सक्लूसिव। और एवरीडे वेयर जो हैं किसी भी शॉल्स के साथ चल सकते हैं और चाय पे जाने के लिए विंटर्स में ये बहुत सूटेबल है। नुमाइश में मलबूसात के साथ साथ ज्वेलरी, परफ्यूम्स और इतर के स्टॉल्स भी मरकज़े निगाह बने रहे। नित नए डिजाइन पर मुश्तमिल मलबूसात को खातीन ने बेहद पसंद किया। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने दोस्ती सीरीज के मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद गोल्डन स्टार क्लब को 7 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर खेले गए मैच में अलीगढ़ क्लब की टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 290 रन बनाकर आउट हो गई। हमजा 75, वसीम 56 और रिजवान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।